I'm Fatima from SIRT. So today's topic is Nyquist plot. In this you can see the first point is the Nyquist plot were invented by the Nyquist and who worked at the Bell Laboratories. He is a person who invent this Nyquist plot. With the help of this, the stability is possible to determine. Second point is Nyquist plot are a way of showing frequency response of the linear systems. So if any linear system transfer function is available, that transfer function frequency response can be shown with the help of the Nyquist plot. And as we already know that there are different methods for plotting of the frequency response, like Bode plot, you have already studied about that. In that also you plotted the frequency response. Frequency response means magnitude and the phase angle. So with the help of the Bode plot, it is possible to display the frequency response. But with the help of the Nyquist plot, it is also possible to display the frequency response. And Bode plot use the frequency as the horizontal axis and use two separate plots to display the amplitude and the phase angle. But in the Nyquist plot, the amplitude and the phase angle will be shown on a single plot using frequency as a parameter in the plot. And Nyquist plot have the property that allows to see that whether the system is stable or unstable. So Nyquist is actually a polar plot, whereas the Bode plot is the rectangular plot. But here Nyquist plot is a polar plot of the frequency response of a linear system. It means Nyquist plot is a plot of the transfer function for Gs with S equal to j omega. That is, we have to substitute the value of S equal to j omega. So it is required to plot the Gj omega. So Gj omega, as you know, you can see j omega, it is a complex number. So for any complex number, what we will be going to do, we are going to plot a complex number for any angular frequency omega. So the complex number Gj omega, this depends upon the frequency. As you can see, Gj omega I am writing. So obviously this depends on the omega value. So the frequency will be a parameter if you plot the imaginary part against the real part. And in the Nyquist plot also, the magnitude and the angle plot will be plotted, but it is on the polar plot. As you have already seen the polar plots, in the polar plots, the magnitude and angles are plotted. So in the Nyquist also the polar plot is plotted. Now there is one more thing in this important. Here it is, this is important that the characteristics equation, all of you know about the characteristics equation, it is 1 plus Gs Hs. So that 1 plus Gs Hs is denoted by Q of S here. Now if I am talking about the roots of the Q of S, it means I am talking about the poles of the closed loop system, closed loop control system. But here we say that the zero of Qs means that is the roots of the characteristics equation. It means roots of the characteristics equation means poles of the closed loop control system. So zero of Qs is poles of the closed loop control system. But here we are calling it zero of characteristics equation. Now next point is the poles are the same as the open loop poles. If the open loop transfer function is available and the denominator roots will be giving the poles. Now for the system to be stable, the roots of the characteristics equation, that is what we are talking about. We are talking about the poles of the closed loop system must lie in the left half of the S plane. And what if the open loop system has poles in the right half plane? It means the open loop system will be unstable. So the expression for the Q of S suggests that even if the open loop system is unstable, but it is possible that the closed loop system may be stable. So it is required to investigate where is there any roots of the QS that is any pole of the closed loop control system, whether it is present on the right half of the S plane or not. And this can we do with the help of the Nyquist plot. So this leads to the Nyquist stability criteria. So now I'm
Stopping sharing this. Now come on the pen paper. तो हम क्या बात कर रहे थे? हमने बात करी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें गिवन होगा तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है कि स्टेबल हो, लेकिन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हमें स्टेबल दिखा रहा है, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। ओके, तो हमें यही फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द Nyquist plot. This is possible to find out whether the closed loop system is stable or not. If the open loop transfer function is stable or unstable. If the open loop transfer function is unstable, it is possible that the closed loop transfer function is stable. See here, what am I saying? I'm saying that first I'm talking about, just a minute. Please wait. Only 1 minute. Yeah. So now you can see here. So see, I'm talking about the open loop transfer function. So open loop transfer function is denoted by, anybody? G of s, h of s. So the open loop transfer function is denoted by G of s, h of s. So this is possible that it can be, this can be unstable. This can be unstable, but the 1 plus G of s, h of s, this can be stable. So this is the characteristics equation of the closed loop system. So with the help of this, if I am finding this, whether if it is unstable, but this is possible to make that this system may be stable. So we can find out with the help of the Nyquist plot. Nyquist is having the privilege to find out whether the system, closed loop system, is stable or not. And in this is using the principle of argument, the Nyquist criteria. The Nyquist criteria is principle of argument, or you can say this is the Nyquist criteria. So this is the now I'm talking about the Nyquist criteria. So this is equal to n equal to p plus minus z plus. Now where this z plus is actually the number of roots of the characteristics equation. Number of roots of characteristics equation. So now you can see if I'm talking about roots of the characteristics equation, that is the denominator part of the transfer function. So in this, what I can say, what am I saying? The poles of the closed loop system. The poles of the closed loop system. But here in the Nyquist criteria, this term is denoted by z plus, that is zeros. So this is what? This is the zeros is actually nothing, but this is the poles of the closed loop system. Okay, but in the Nyquist criteria, this is denoted by z plus. Now next is the p plus. Now what is p plus? P plus is the number of poles present on the right hand side of S plane of open loop transfer function.
So see here, the P plus is the number of poles of open loop transfer function. है ना, ये वाला जो हमने GSHS कंसिडर किया था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसके रूट्स को हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, पोल्स है ऑब्वियसली, डिनोमिनेटर की टर्म में तो पोल्स है जी ऑफ एच एस के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं जी ऑफ एस एच ऑफ एस के लिए बात कर रहे हैं, हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं. सो इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम क्या देखते हैं, इसकी जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स हैं. तो हम ये देखते हैं P प्लस क्या होता है, P प्लस इस कितने पोल्स हैं जो कि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है एस प्लेन के, और कौन से ट्रांसफर फंक्शन के, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के. वेयर Z प्लस हम क्या देख रहे हैं कि कितने पोल्स हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो कि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है एस प्लेन के, इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. So this is referring to 1 plus G of S H of S. So Z plus refers to the 1 plus G of S H of S, and P plus refer to the GSHS. P plus is referring to the open loop transfer function. Z plus is referring to the 1 plus GSHS, that is to the characteristics equation of the closed loop system. Is it clear? Yes, ma'am. Yes or no? Mohit is saying something. Am I Yes, audible ma'am, to all of it's you? clear. Yes, ma'am, it's clear. Okay. अभी तक हमने सिर्फ दो ही बातें करी हैं कि Z प्लस क्या है और P प्लस क्या है. P प्लस क्या है, पोल्स हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, और Z प्लस क्या है, पोल्स हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के, लेकिन उन पोल्स को हम जीरो कह रहे हैं इसमें नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में. नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. नाउ मूविंग ऑन. अब नेक्स्ट हम इसमें एक पॉइंट और देखते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में कि जैसे हम एस प्लेन की बात करते हैं, so the S plane is having the zero as origin. This is real, this is imaginary, this is minus real, and this is minus imaginary. Okay? So the S plane में origin यहाँ पर है, लेकिन अगर हम बात करें Nyquist plot की, this is what Nyquist plot. In this origin is shifted to -1. ये जो origin 0 पे लेते थे वो हमने -1 पे ले लिया है. This is also real, this is also imaginary, same as S plane. But according to the Nyquist, this 0 is shifted to -1 plus J0. देखो ये रियल पार्ट है, रियल पे आ रहा है तो -1, ऑब्वियसली यहाँ पे इमेजिनरी 0 है, तो ये वाली जो वैल्यू है कितनी है, -1 plus J0. So now this is the origin in Nyquist plot. पहले origin था 0 पे S plane पे, लेकिन Nyquist plot में origin कहाँ पर है, -1 plus J0 पे है. Please all of you just wait. यहाँ बाहर काम हो रहा है, मैं उसको बोल के आती हूँ जरा, है ना, तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है. Please wait all of you. मुझे यहाँ बहुत शोर सुनाई दे रहा है, आप लोगों को भी सुनाई दे रहा है क्या?
बोलो, No, ma'am. आप लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? मैम उतना नहीं आ रहा है। No, ma'am. यहाँ तो बहुत आ रहा है, मेरे को खुद को मेरी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। चलो देखते हो, ट्राई कर रही हूँ, बताती हूँ आगे तुम लोगों को। सो सी, अब हमने देख लिया कि नाइक्विस्ट ने क्या किया। एस प्लेन में देखो, एस प्लेन में 0 ओरिजिन था, तो नाइक्विस्ट ने इस ओरिजिन को -1 + J0 पे शिफ्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट देयर इज वन मोर थिंग इन दिस। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी, इसके अंदर n = p + z+, है ना। तो p प्लस हमने का देख लिया था, z+ देख लिया था। सो n इज द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स, number of encirclements of -1 + J0 in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स -1 + J0 पे, यहाँ पे जो एनसर्कलमेंट होगा, मतलब इस ओरिजिन पे कितनी बार एनसर्कल कर रहा है वो हमें देखना है, और वो भी देखना है हमें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी बार एनसर्कल कर रहा है। सो n इज द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स ऑफ दिस ओरिजिन -1 + J0। अब हम आगे देख लेते हैं। सो नाइक्विस्ट प्लॉट इज ड्रॉन on polar plot, or this is a polar plot actually, and drawing from s = 0 to, so take it omega = 0 to omega = infinity, and omega = -infinity to omega = -0. That is, we are taking the frequency from 0 to -0, all positive values and all negative, all the values, like towards the right hand side and towards the left hand side, all the values of the frequencies are considered. So Nyquist plot is nothing but the polar plot, and we are going to draw from omega = 0 to omega = infinity, and from omega = -infinity to omega = 0. अच्छा, अब एक और पॉइंट इसमें नाइक्विस्ट में बताना है मुझे, इसमें आपको कि एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नाइक्विस्ट, क्योंकि नाइक्विस्ट का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। So see, this is the type of the system. ब्लड तो नहीं दिख रहा तुम लोगों को? No, ma'am. Angle through which Nyquist plot is to be closed from omega = 0 to omega = -0. No, it should be from -0. This is starting from -0 to +0. The angle through which the Nyquist plot is to be closed from omega = -0 to omega = +0. So we should know about it. See here, the type of the system, if this is a type 0 system, so this will be going to plot by 0 angle. If the type of the system is 1, then this is going to be plotted by -π. Next, if this is type 2, then this is -2π. If this is 3, then this will be -3π. And if this is n type of the system, then if this is n type, that's -nπ. So it depends on the type of the system, the angle through which the Nyquist plot is to be closed. And this is according to the type. If the type of the system is 0, तो उसका जो Nyquist plot का जो angle होगा वो 0 होगा. अगर type 1 है तो उसको -π से encircle करना है. अब कैसे करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे इसको, बस अभी समझ लो. अगर टाइप 2 है तो -2π से करेंगे एंड सो ऑन, है ना. सो देयर इज वन मोर थिंग इन दिस कि हम जब भी कोई प्लॉट बनाते हैं, जैसे तुम लोग को मैंने बोला है कि ये पोलार प्लॉट है, तो मान लो ये मैंने कोई एक पोलार प्लॉट बनाया, ठीक है, ये पोलार प्लॉट बन गया.
तो ये एक पोलार प्लॉट हम कहाँ से बनाते हैं, ओमेगा इक्वल टू 0 से लेके ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी तक बनाते हैं। लेकिन हमें नाइक्विस्ट में पोलार प्लॉट कहाँ से कहाँ तक बनाना है, ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से ओमेगा इक्वल टू माइनस 0 तक भी ले जाना है। तो ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे तो हमने शो कर दिया। अब ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी और ओमेगा इक्वल टू माइनस 0 पे जब शो करते हैं तो मिरर इमेज बनेगी। जैसा ये बनाया ना बिल्कुल सेम बनेगा। मतलब यहाँ पे ये वाले ओमेगा की वैल्यू पे ये जो वैल्यू वो यहाँ बनेगी इस जगह पे। ओके, इसी तरह से जैसे ओमेगा की वैल्यू ये है ना तो वो वैल्यू यहाँ बनेगी। तो जस्ट मिरर इमेज बनेगी। तो देखो मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से शुरू करेंगे अब हम बनाना। तो देखो ये वाली वैल्यू इधर बनेगी। हमेशा याद रखो कि वर्टिकली मूव करेगा जो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, देखो मैं क्या बोल रही हूँ एक्चुअली a प्लस आई बी बोल रही हूँ, है ना, या j लिख लो, a प्लस जे बी। अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनाना है तो a माइनस जे बी होगी इसकी मिरर इमेज। मतलब सिर्फ इमेजनरी वैल्यू चेंज होगी, रियल वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ बना है इसकी रियल वैल्यू तो ये निगेटिव में ही है, लेकिन इमेजनरी में यहाँ ये इधर इस साइड बना है तो इसके जस्ट अपोजिट बनेगा। मतलब ये पॉजिटिव में इमेजनरी, और जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो निगेटिव में बनेगी। तो देखो ऐसे बनाएंगे हमने, ये उसकी मिरर इमेज होगी। इस पेन से बना देती हूँ, ये इसकी मिरर इमेज है। जस्ट इसके अपोजिट बनेगा, है ना। तो अगर ऐसा बना लेंगे, अब ये पोलार प्लॉट बन जाता है। इस पोलार प्लॉट को बनाने के बाद हमें बनाना है नाइक्विस्ट कंटूर सी। अब हमें बनाना है नाइक्विस्ट कंटूर। अगर हमें नाइक्विस्ट कंटूर बनाना है तो नाइक्विस्ट कंटूर, सब लोग ना अटेंडेंस के लिए री लॉग इन कर लेना। अगर हमें नाइक्विस्ट कंटूर बनाना है तो उसका एंगल यहाँ से डिसाइड होता है टाइप से। मान लो अगर टाइप 1 सिस्टम था तो टाइप 1 सिस्टम, मान लो ये जो मैंने प्लॉट बनाया मैं कंसिडर कर रही हूँ टाइप 1 सिस्टम के लिए बनाया। तो मुझे जो नाइक्विस्ट कंटूर बनाना है वो नाइक्विस्ट कंटूर क्या है एक्चुअली, हाफ सर्कल है। दिस इज हाफ सर्कल, एंगल इज निगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है हमें। एक तो नाइक्विस्ट कंटूर यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से, नाइक्विस्ट कंटूर हाफ सर्कल है। इस हाफ सर्कल का रेडियस इंफिनिटी है एंड एंगल जो बनेंगे वो बनेंगे क्लॉकवाइज एंगल बनेंगे, मतलब निगेटिव एंगल है। अभी हमने देखो निगेटिव एंगल ही बनाया ना, टाइप 1 सिस्टम है तो कितना होना चाहिए, -पाई, मतलब निगेटिव एंगल बनाया है। तो कैसा बनेगा नाइक्विस्ट कंटूर, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो देखो कैसे मूव करेगा क्लॉकवाइज, जैसे मैंने ये प्लॉट बना लिया और मैंने बोला कि टाइप 1 सिस्टम है। तो अब मुझे हाफ सर्कल बनाना है, और हाफ सर्कल बनाना है वो भी एंगल -180 डिग्री का। देखो ये 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180, ये -270। अब यहाँ पे ये प्लॉट खत्म हो रहा है, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच हो रहा है। तो वहां से अगर हम लाइन बनाएं, ये भी कहीं इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है, तो अगर मैं वहां से लाइन बनाती हूँ इन्फिनिटी से तो 180 डिग्री, क्योंकि टाइप 1 में कंसिडर कर रही हूँ और -पाई से बनाना है नाइक्विस्ट कंटूर, तो कितना बनाऊंगी 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का सर्कल होगा, दिस इज 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया, है ना, ये 180 डिग्री। और ये जो रेडियस है इसको इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द नाइक्विस्ट कंटूर, दिस इज नाइक्विस्ट कंटूर। ओके, तो इतना नोट डाउन करो फिर बताती हूँ आगे। प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू। नाइक्विस्ट कंटूर के बारे में नोट डाउन कर लो। नाइक्विस्ट कंटूर इज एक्चुअली द half circle which is having a radius of infinite and this is having angle of negative. That is it. The Nyquist contour will be moving in clockwise direction. So ना तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये पेज रख दूं कि हटा लूं, बोलो। यस मैम हो गए नोट।
हो गया? नोट डाउन कर लिया? बड़ा फास्ट नोट डाउन करते हो तुम लोग। नाइक्विस्ट कंटूर के बारे में नोट डाउन कर लो। हाँ, अब उस रूम में करेंगे। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही आवाज। हाँ नहीं, लेकिन आप वो क्या सुन ही नहीं रहे मेरी आवाज? बोलो। हाँ वही ना, अब वो दूसरे रूम में करेंगे लेक्चर। चलो, लेट अस वी स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। The numerical is examine the closed loop system. एक्चुअली क्या है, देखो नाइक्विस्ट क्या कह रहा है कि ओपन लूप सिस्टम से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। सो द न्यूमेरिकल इज एग्जामिन द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम whose open loop transfer function is given below. G of S H of S is equal to K upon S into ST plus 1. So the solution is, the first step is in this, put S equal to J omega. अच्छा, नोट डाउन कर लो पहले सब लोग न्यूमेरिकल, फिर बताती हूँ। वैसे तो 4 मिनट बचे हैं, सो लेट्स सी, थोड़ा एक आध पार्ट हो जाएगा। प्लीज ऑल ऑफ यू लॉग इन फॉर योर अटेंडेंस। ये नोट डाउन कर लिया, K upon S into ST plus 1. For this you have to make the Nyquist plot. So first of all, put S equal to J omega. So I'm writing G J omega H J omega equal to K upon J omega into J omega T plus 1. So now we have to see पोलार प्लॉट कैसे बनाते थे तुम लोग, वही पोलार प्लॉट बनाना है। क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पोलार प्लॉट का? यस, कम ऑन। पोलार प्लॉट क्या करेंगे? पोलार प्लॉट के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? सुमित, आप बताओगे बेटा? सुमित नहीं, सुमित है ही नहीं, रिमूव कर दूं क्या सुमित को? योगेश, तुम बताओगे? अगर देखो नहीं आता तो नो कर दो। हाँ राइट ज्योति, और भी तो है। हाँ राइट राइट ज्योति, यू आर राइट। योगेश, आर यू देयर? योगेश, अगर ये लोग नहीं है तो फिर मैं रिमूव कर देती हूँ। सुमित तो जनरली होता है, सुमित का नो मैम आ गया, इसे नहीं पता। योगेश तुम बताओ। कीर्ति आप बताओ क्या क्या प्लॉट करना है हमें? हाँ मानसी राइट, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड एंगल हमें प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड कर लेंगे। योगेश, मुझे तुमसे आंसर चाहिए, प्लीज टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। योगेश, हाँ मोहित बोलो। यस, बताओ मैग्नीट्यूड मोहित। मैम में हाँ मैम हाँ बोलो। अंडर रूट ओमेगा, के अपॉन क्या? ओमेगा अंडर रूट ओमेगा, हाँ अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर टी स्क्वायर, ओमेगा टी स्क्वायर हो स्क्वायर जाएगा ना, प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 है ना। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट मोहित। अब नेक्स्ट एंगल कौन बताएगा मुझे? एंगल ऑफ दिस, yes anybody, please raise your hand. मैम tan इनवर्स 0.3
minus tan कितना inverse. होगा एंगल बोलो मोहित? हाँ, मैम tan inverse 0 upon k 0 upon k। अच्छा ठीक है, हाँ minus आगे। minus हाँ, tan inverse omega upon यस 0 यस, minus tan inverse हाँ omega t हाँ, upon 1. वेरी गुड मोहित, वेरी नाइस। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये तो जीरो हो गया, tan इनवर्स ऑफ जीरो माइनस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो गई, ये वाली टर्म tan इनवर्स ऑफ जीरो वाली टर्म जीरो हो गई। दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई एम राइटिंग हियर माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी। मतलब हम पोलर प्लॉट ही बना रहे हैं, देखो अभी तुम लोग, है ना? सो दिस इज द एंगल, ऑल ऑफ यू नोट डाउन। 1 मिनट से भी कम बचा है मीटिंग के लिए, सब लोग री लॉग इन करना। ये 40 लोग कहाँ से हो गए भाई? इतनी लेट किसने क्यों ज्वाइन किया तुम लोगों ने? ओके, सो मैग्नीट्यूड हो गया और एंगल हो गया। अब पोलर प्लॉट में तुम्हें पता है कि मैग्नीट्यूड और एंगल हम कैलकुलेट करते हैं ओमेगा इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे। डू ऑल ऑफ यू सेम एज पोलर प्लॉट। नंबर 4, ओमेगा इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे हम को मैग्नीट्यूड लेना है और एंगल लेना है। तो मैग्नीट्यूड बता दो कितना होगा? कौन बताएगा? मोहित? नहीं, मोहित के अलावा कोई बताए और? यस कम ऑन, कोई और बता दो भाई। मोहित को पोलर प्लॉट